Okay, so now we have completed unit number 3, statistics, and now we will start the next unit, okay, which is probability distribution. तो ये भी कुछ ज़्यादा lengthy unit नहीं है. Maybe within this week also we can complete this unit, and after that, yes, I will share today. Actually, Wi-Fi में problem इसलिए कल के recording में share नहीं कर पाए, but I will share today all those recordings. ठीक है. Okay. And now we'll start the unit number 4, that is probability distribution. Okay. So what is probability? Okay, probability is simply how likely something is to be happen. Okay, or whenever we are unsure about the outcome of an event, okay, we can talk about the probabilities of certain outcomes. Okay, so ज्यादातर केसेस में क्या होता है, there are certain things which outcomes are not exact, है ना? So in that case we have to talk in terms of the possible outcomes. Okay? So, so at the end, probability is the chance of an outcome in an experiment, also called as event. For example, if I consider the event like say tossing a fair coin, then your outcomes are head and okay. So when you take the experiment of tossing a coin, okay, so the possible outcomes are either it is tail or either it is head. If I consider fair coin, okay. So what is the difference between this probability and statistics? क्योंकि statistics आपने अभी पहले learn किया, then you directly go to the next part, which is probability. So what is that exact difference? Probability deals with the predicting the likelihood of the future events. Statistics involves the analysis of the frequency of the past events. Okay, so that is a exact difference between probability and statistics. Okay, so you can predict something from probability, and you can analyze something using statistics. ठीक है. Then next part is random variable. ठीक है. आपको actually probability बस में so pure probability के एक सेक्शन है आपको, बट उसके डायरेक्टली मैं एमसीक्यूज लेके वो टॉपिक कंप्लीट करने वाला, बट ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपको आते हैं वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आते हैं. उनमें से कैन एनीवन distribution one tool in case of probability distribution, because you all are aware about this. Pure probability is difficult, जो ज्यादातर स्टूडेंट को डिफिकल्ट जाती है प्योर प्रोबेबिलिटी. ठीक है, उसके क्वेश्चन भी मैं लेने वाला, बट आपको सिलेबस में ज्यादा फोकस करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो इट्स फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल tell me at least one tool to find the one tool of probability distribution. तो पता होगा आपको related with probability distribution. Anyone, can you share something? What you know about probability distribution? आपको 12th में था ये टॉपिक, 11th-12th में है ये टॉपिक. आपने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टूल आपने लर्न किया है ऑलरेडी. Is there in your syllabus of I think in 12th standard? Can you tell me that? Which type of distribution? Correct. So have you learned this binomial distribution, binomial probability distribution? ये आपने 11th में लर्न किया है कि नहीं? हाँ, so that is one tool, and in your syllabus, two more tools are there. One is Poisson distribution, the next part is normal distribution. ठीक है, यही आपका एक्चुअल सिलेबस है. प्योर प्रोबेबिलिटी के भी आपको कुछ क्वेश्चंस आने वाले. सो अभी प्योर प्रोबेबिलिटी में भी हमें ज्यादा इन डिटेल में नहीं जाना है. ओके, देयर आर थिंग्स आर देयर इन प्योर प्रोबेबिलिटी, है ना. एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट. तो इतना कुछ हमें उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है. इसलिए पहले मैं क्या करता हूँ, पहले फर्स्ट आई विल कंप्लीट द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, जो एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. Then I will directly take around 20-21 questions on probability. That is enough. ठीक है.
थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इंपॉर्टेंट था ही नहीं, जस्ट फॉर ऑनलाइन पर्पज वी हैव टू कवर दैट पार्ट, ठीक है। बट आपको ज्यादा फोकस करना है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट is random variable. Okay, so what this random variable do? A random variable is actually a rule that assigns a numerical value to an outcome of the experiment. Okay, I will explain directly through one example. If you consider an experiment of tossing a coin, yeah, two unbiased coins are tossed simultaneously, two coins, then we know the sample space, yeah, the possible outcomes, set of possible outcomes. So maybe you will get both head. Okay, maybe you will get one as head, second as tail, or one as tail, second as head. Maybe your both on both coin you will get tail. Okay, so these are the possible outcomes: H H H T T H and T T. Okay, what this random variable what is meant by random variable? So it's actually a rule. Okay, so yeah, आपको define करना है. So here I define that random variable x to be the number of tails obtained in a toss. Okay, तो आपको ऐसे डिफाइन करना है सो दैट, ओके, यू डिफाइन दिस रैंडम वेरिएबल, ओके, so define in a such a way that corresponding to each outcome you will get a certain numerical value. Okay, so here if I define a random variable x to be the number of tails obtained in a toss, okay, then that gives you, तो x का मीनिंग क्या है? जस्ट काउंट द नंबर ऑफ टेल्स. x का मीनिंग क्या है? जस्ट काउंट द नंबर ऑफ टेल्स. So x of h, how many tails are there? 0. So you can see, so this x actually assign 0 value to this first outcome. That is nothing but a random variable. So so this rule assign a numerical value to an outcome of the experiment. If I consider x of ht, how many tails are there? There is only one tail, so x of ht is 1. X of th, how many tails are there? Only one tail, so x of th is 1. And x of tt, how many tails are there? There are 2. So you can see this x random assign a numerical value to each outcome, and the total number of outcomes, or total number of the total set of this x is actually 0, 1, 2. Okay, so these are the values corresponding to your random variable. Okay, okay. Is this clear? Random variable concept clear hai? Is this clear or not? Are you there or not? Is this clear or not? Random variable part. Yes. ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो जल्दी से. रैंडम वेरिएबल का पार्ट. रैंडम वेरिएबल मींस व्हाट? जस्ट असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच आउटकम, है ना. कोई भी क्या एक्सपेरिमेंट कंसीडर करो, उसके जो भी आउटकम्स है, एक्स आपको ऐसे डिफाइन करना है सो दैट करस्पॉन्डिंग टू ईच आउटकम यू विल गेट सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यू. इज दिस क्लियर और नॉट? टेल मी यस और नो. बट आवर मेजर फोकस इज ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, इसीलिए मैंने आपको पहले क्लियर किया कि ज्यादा कुछ हमें प्योर प्रोबेबिलिटी में नहीं जाना है, क्योंकि वो भी एक अलग ही यूनिट है. ओके, बट as far as our syllabus is concerned, we have to focus more on the distribution part. Okay, so can anyone tell me what is the difference, or why we need this probability distribution? Any idea why we need probability distribution? Probability distribution से भी आपको probability ही मिलती है. ओके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो. बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? एनी आइडिया? कुछ अगर आपको याद आ रहा है तो. व्हाट इज द बेनिफिट विद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाई वी नीड टू यूज दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, हाँ, okay, so one answer which I got is, in case of complex problems, binomial distribution actually makes your calculation simple. Okay, that is what you want to say. Okay, any other reason? I want the exact reason. What is the benefit with, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आपको पता है कैसे कैलकुलेट करनी है ना. सो डिस्ट्रीब्यूशन में फिर आप क्यों जा रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस एक फॉर्मूला जनरेट आप करते हो और जिससे डायरेक्टली आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है. रफली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आप एक फॉर्मूला सेट करते हो
ओके, मीन्स यू कैन बेसिकली आप एक प्रोग्रामिंग सेट करते हो, तो बोलना है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप एक प्रोग्रामिंग सेट करते हो। तो इसका एक्चुअल जो यूज वो क्या है कि रेगुलर प्रोबेबिलिटी जो आपने थ्योरी लर्न की है, दैट इज यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर लेस। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर टॉसिंग अ एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, जब आप 2 बार टॉस करते हो देन यू विल गेट 4 आउटकम्स। ठीक है, then you can easily work on this 4 outcome. You can count the number of tails. Okay, अगर आपको चाहिए कि probability of getting 1 head, probability of getting at least 2 head, probability of getting at least 3 head, तो वो लेस नंबर ऑफ ट्रायल के लिए वो पॉसिबल है। ओके, बट इफ यू रिपीट दैट टॉसिंग अ कॉइन एक्सपेरिमेंट, tossing a coin, say tossing a 2 coin, so there are total 4 outcomes: HH, HT, TH and TT. Okay, what happen if I consider an experiment of tossing a 3 coins? How many outcomes are there? How many outcomes are there if I toss that coin 3 times? How many outcomes are there? 8. Huh? 8. 8. Total there are 8 outcomes. If I consider 4 times, so what is 60? आई थिंक 2 का फॉर्मूला है। ओके, टॉसिंग अ कॉइन में। ओके, आप देखो ना, जब आप 2 बार टॉस करते हो यू विल गेट, when you toss that coin 3 times then you will get 8 outcomes. When you toss that coin 4 times you will get 2 to 4 outcomes. ठीक है, तो अभी आप देखो जब आप 3 times ही टॉस करते हो तो बेसिकली आपको उस केस में 8 outcomes मिल जाते हैं। ठीक है, अभी आप इमेजिन करो इफ आई रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट 100 times then it become 2 to 100 outcomes. Then it become difficult for you to calculate the probability. प्रोबेबिलिटी रिलेटेड विद द इवेंट, जो भी इवेंट आपको गिवन होगा। ठीक है, उस केस में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना फिर आपके लिए डिफिकल्ट होगा। एंड हियर कम्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो जनरली दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर लार्ज। जहां पे आपको पता है कि यहाँ पे ट्रायल्स ज्यादा है ना, अराउंड 3-4 ट्रायल तक ठीक है, आप मैन्युअली कैलकुलेशन कर सकते हो। दैट इज नथिंग बट योर प्योर प्रोबेबिलिटी, जो आपने ऑलरेडी 11th एंड 12th में लर्न किया था। लास्ट में एक टॉपिक था ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। बट इसका एक्चुअल यूज क्या होता है कि आप नाउ इट इज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ट्रायल्स, या ना आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यू कैन असाइन अ लार्ज वैल्यू फॉर दैट एन, तो आपको डायरेक्टली उस केस में प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। दैट इज द बेनिफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो so probability distribution is a probability of values of a random variable. तो जो random variable के जो values आते हैं उनकी आपको probability calculate करनी है। ठीक है, so for example x is what number of tails obtained in a toss, तो x की value क्या थी 0। ठीक है, so what is the probability of x is equal to 0? You read this, what is the probability of getting 0 head ना, 0 tail? x means what number of tails, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 टेल? यस 0.25. यस अब फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? व्हाट इज द फॉर्मूला बोलो पहले, नीचे क्या आता है? Number of outcome upon total outcome. हाँ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। व्हाट इज द न्यूमरेटर? मुझे पता नहीं आपने मतलब कौन से लैंग्वेज में लर्न किया। व्हाट इज इन द न्यूमरेटर? आई थिंक ये एन ऑफ यस होता है, मतलब अब अपने हिसाब से जाओ। हाँ, व्हाट इज द न्यूमरेटर? फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो कैलकुलेट करना है उसका टोटल काउंट आपको चाहिए बेसिकली। फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या जो भी इवेंट है उसके आउटकम। ठीक है, जनरली इट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए। ठीक है, हाँ अभी देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। P of x is equal to 0 means I want the probability of getting 0 tail. अभी कितने आउटकम में 0 tail मिल रहा है? How many outcomes are there? There is only one outcome where you will get, there is only one outcome where you will get 0 tail. Let me erase that. ठीक है, so there is only one outcome where you will get 0 tail. So जो फेवरेबल आउटकम वो क्या है 1। अगर एक और यहाँ पे आ जाता है ना, चलो यहाँ पे क्रिएट भी नहीं कर सकते। ओके, इन दैट केस योर काउंट इज 2। ओके, तो न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर बेसिकली क्या होता है,
जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है वो आउटकम, दैट काउंट यू हैव टू राइट इन न्यूमरेटर, या सिंपली द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, एंड बेस इज व्हाट, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सो टोटल देयर आर 4 आउटकम्स, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 टेल is 1/4. Now you can tell me what is probability of getting 1 tail. So just count the outcomes which contain 1 tail. 2/4. ठीक है, that is nothing but 1/2. ठीक है, so numerator basically क्या होता है, the it is a count of the outcomes which contain x is equal to 1 or which contain number of tails to be 1 and divided by total number of outcomes. जो last क्या है, x is equal to 2 means probability of getting 2 tail. Yes, what is that? 1/4, because there is only one outcome which contain 2 tail, so 1/4. ठीक है, तो ये आपकी रेगुलर प्रोबेबिलिटी है, दिस इज योर यूजुअल प्रोबेबिलिटी जो आपने 11th 12th में जनरली ये चीजें आपने फॉलो की। इसके ऊपर भी हमें डिप में जाना है बट नॉट इनिशियली। ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, सिंपल है। कैसे हमने, हाउ यू अप्रोच टुवर्ड्स दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द इवेंट, ये इवेंट पे डिपेंड होता है, आप जो भी कैलकुलेट करें। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इवेंट और ऑफ एन रैंडम वेरिएबल। ठीक है, आप इसको इवेंट भी ट्रीट कर सकते हो, आप इसको रैंडम वेरिएबल भी ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, लेट मी चेक whether anyone is there in waiting room or not. ठीक है, okay, and now so now total there are this many distributions are there, okay, in general, but as far as our syllabus is concerned we have to focus on only this and this. आपको समझ में आ रहा होगा कि there is one section which contain discrete probability distribution, okay, there is one section which contain continuous probability distribution. ठीक है, ये मतलब ये जो दो टॉपिक है ना, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ओके, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन फ्यूचर आल्सो। ओके, आपको समझ में आ जाएगा, जैसे आप आगे आगे जाओगे ना तो आपको इसके इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएंगे। ओके, नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? बोलो, और कैन यू टेल मी वन एग्जांपल, or can you tell me definition, anything, what you understand from these two words, discrete probability distribution? probability distribution क्या होता है? probability distribution क्या होता है? जो रैंडम वेरिएबल या जो इवेंट आप डिफाइन करते हो उनकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी, दैट इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। when it is discrete, when it is discrete, when it is continuous, any one example? Okay, tossing a coin, tossing 2 coin say 10 times, कुछ भी आप ले सकते हो, इज इट डिस्क्रीट और इज इट कंटिन्यूअस? डिस्क्रीट, क्योंकि आउटकम जो आ रहे हैं डिस्क्रीट इन द सेंस आउटकम्स आपके इंटीजर फॉर्म में आते हैं। ठीक है, या जो रैंडम वेरिएबल एक्स आपका जो था ना वो इस फॉर्म में आता है, ऐसे डिस्क्रीट फॉर्म में आता है। ओके, कैन एनीवन टेल मी एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? can think and can tell me that example. Continuous probability distribution. Continuous probability distribution means दो नंबर में गैप नहीं आना चाहिए, सिंपली दो नंबर में गैप नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हो क्या? टॉसिंग अ कॉइन में, वेरी गुड, ओके, हाइट ऑफ द पर्सन। ठीक है, सो 7.2 7.13, okay, so आपको पता है, if I consider from the universe, okay, if I consider the height of the person from the universe, तो आपको पता है कि ये डिस्क्रीट होगा ही नहीं। ओके, हर एक नंबर के पीछे आपको एक पर्सन मिल जाएगा जिसकी हाइट दैट नंबर होगी। ठीक है, सो यू कांट, इसको आप बोल सकते हो, यू कांट, इसको एक वर्ड है, क्या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, और कंटिन्यूअस मींस विदाउट अ ब्रेक, सिंपली। ओके, अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन जा रहे, कंटिन्यूअस मींस विदाउट अ ब्रेक। ओके, विल गेट द वैल्यू, सिंपली यू कैन डिफाइन दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन।
ठीक है, और ये जो आपने डिफाइन किया था ये इन टर्म्स ऑफ समेशन आपने डिफाइन किया, ठीक है। विल टेक सम एग्जांपल डायरेक्टली, ओके, ऑन डिस्क्रीट. So on, I will take some more examples of discrete probability distribution. Okay. So you can see this. Number of children in a family, that count is discrete. Okay, that count is discrete. Means 1 or 2. Okay, इनमें gap रहेगा. Okay, you can't assign 1.1 value, you can't assign 1.2 value, you can't assign 1.3 value. So there is a gap between these two numbers. Okay, उसके एक word है. Okay, अभी मुझे याद नहीं आ रहा. Now number of cars sold by different companies in a year. Okay, that is also the discrete. Number of patients admitted to ICU of a hospital in a day, that is also a discrete number. It's an integer value. Okay. Number of days of a rainfall in a city, discrete. Number of stars in the sky. See, this count is infinity. ये infinity count है. Okay, but still it is a discrete. क्योंकि वो count integer ही होगा ना. Either it is 10 or either it is 11. ऐसा कभी नहीं होगा कि there are 10.1 stars in a sky. मतलब it's a discrete value. There is a gap between these two numbers. ठीक है, तो these are the examples of discrete probability distribution. And in our syllabus, we have 2 tools to find the probabilities in case of discrete distribution, okay, or discrete probability distribution. One is binomial and second is Poisson. Okay. So let me start with the binomial probability distribution. So consider, so these are the conditions for the binomial distribution. क्योंकि आपको ये भी समझ में आना चाहिए how you actually differentiate the binomial distribution and Poisson distribution. कौन से केस में binomial आता है, कौन से केस में Poisson आता है, ये भी डिसीजन आपको लेना है, ठीक है. So for that you need to remember these conditions. So consider an experiment with only 2 outcomes. Okay, one is called as success and other is called as failure. ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन में सक्सेस होता है या आपके ऊपर डिपेंड है, या डिपेंड ऑन द गिवन एग्जांपल. एग्जांपल में जो भी गिवन होता है दैट इज सक्सेस, ठीक है, उसका जो अपोजिट पार्ट होगा दैट इज फेल्यूर. फॉर एग्जांपल अगर मुझे कैलकुलेट क्या करना है, इफ आई वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, सो गेटिंग हेड, इफ आई वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, ठीक है, सो गेटिंग हेड इज माय सक्सेस. अगर क्वेश्चन में ये दिया है तो गेटिंग हेड इज माय सक्सेस, सो ऑब्वियसली गेटिंग टेल इज माय फेल्यूर. ठीक है, तो हर एक एक्सपेरिमेंट में यही 2 पॉसिबल आउटकम चाहिए. तो इट डिपेंड, सो सक्सेस इज डिपेंड ऑन द एग्जांपल या इट डिपेंड ऑन द गिवन एक्सपेरिमेंट, उसका जो भी अपोजिट पार्ट होगा दैट इज योर फेल्यूर. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. ओके, एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव ओनली 2 आउटकम्स, मींस आइदर यू गेट अ सक्सेस और आइदर यू गेट अ फेल्यूर. यही 2 पॉसिबिलिटी चाहिए. इंडिपेंडेंट रिपीटेड ट्रायल्स ऑफ सच एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज बर्नौलीज ट्रायल्स. ओके, एंड जितने बार भी आपको एक्सपेरिमेंट रिपीट करना आप कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है, दोज ट्रायल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट. ठीक है, दोज ट्रायल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट. फॉर एग्जांपल, अगर आप टॉसिंग अ कॉइन का एक्सपेरिमेंट लेते हो, जब आप फर्स्ट टाइम टॉस करते हो, ओके, यू विल गेट आइदर हेड और टेल. जब आप सेकंड टाइम टॉस करते हो, यू विल गेट आइदर हेड एंड टेल. तो ये जो सो दिस 2 ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. फर्स्ट ट्रायल का और सेकंड ट्रायल का कोई रिलेशन नहीं है. ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट ट्रायल पे ही सेकंड ट्रायल डिपेंड है. मतलब अगर आपको पहले हेड मिलता है तो सेकंड में टेल ही मिलेगा, अगर आपको पहले टेल मिलता है तो सेकंड हेड ही मिलता है. अगर ऐसा हो जाता है देन इट बिकम डिपेंडेंट ट्रायल. बट हियर यू वांट द इंडिपेंडेंट ट्रायल. जनरली जो एक्सपेरिमेंट आते हैं वो सारे इंडिपेंडेंट ट्रायल के ही आते हैं. ओके, डिपेंडेंट ट्रायल के भी कैसे आते हैं अभी मैं वो ऐड नहीं करता, बट यू कैन इजीली कंस्ट्रक्ट एन एग्जांपल ऑन डिपेंडेंट ट्रायल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक ठीक है, वो पार्ट वैसे भी आगे आने वाला है. ठीक है, जो कार्ड का एग्जांपल आप ले सकते हो. ओके, अगर आपको इफ यू वांट टू ड्रॉ 2 कार्ड्स फ्रॉम दैट सेट, ओके, पैक ऑफ कार्ड्स, 52 कार्ड्स फ्रॉम दोस 52 कार्ड्स. ठीक है, तो आपको 2 कार्ड्स ड्रॉ करने, या हियर यू वांट टू ड्रॉ 2 किंग्स, ओके, फ्रॉम दोस 52 कार्ड्स. ओके, जब आप फर्स्ट टाइम पे ड्रॉ करते हो, ओके, फिर से अगर आप जब आपने फर्स्ट टाइम पे ड्रॉ किया उसके बाद फिर से आपने इफ यू अगेन पुट दैट कार्ड इन दैट पैक, ओके, देन इट बिकम इंडिपेंडेंट. बट जब अगर आपने वो कार्ड उसमें मतलब पुट नहीं किया देन इट बिकम इंडिपेंडेंट. ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए. ओके, सो दैट पार्ट इज अभी उस पर ज्यादा कुछ फोकस नहीं करना है. ओके, वो इट्स अ पार्ट ऑफ प्योर प्रोबेबिलिटी, वो हम लास्ट में डिस्कस करने वाले. बट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में क्या होता है,
जब आप नेक्स्ट ट्रायल पे जाते हो ना, डिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, जब आप नेक्स्ट ट्रायल पे जाते हो, दैट नेक्स्ट ट्रायल इज डिपेंड ऑन योर फर्स्ट ट्रायल, ओके, देन दैट इवेंट बिकम डिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे टाइप के एक्सपेरिमेंट आपको नहीं चाहिए। सो योर ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। मतलब आप फर्स्ट ट्रायल का सेकंड ट्रायल का कोई रिलेशन नहीं है, सेकंड एंड थर्ड ट्रायल का भी कोई रिलेशन नहीं है, इनफैक्ट फर्स्ट ट्रायल का और एनी रैंडम ट्रायल का कोई रिलेशन वहां पे नहीं चाहिए। हर एक ट्रायल में यू मस्ट गेट आइदर हेड और टेल। ठीक है, तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे कंसिडर करने। ठीक है, so that is your second condition. First is there must be two outcomes, either it is success, either it is failure. Second is each trial must be independent. Okay, it is not depend on your previous trial. Okay, so in this case you can apply the binomial distribution. Okay, so in general the probability of success is denoted by small p, that is the probability of success, and the probability of failure is denoted by small q. In fact it is the 1 minus p. Okay, the value of q or the probability of failure is actually 1 minus p, because we know that your probability p is lies between 0 and 1. शायद आपको पता है, ठीक है, because your probability is always lies between 0 and 1. Okay, so if p is the probability of success, then q is what? 1 minus p. इसका जो भी opposite part है, that is your failure part, that is q. ठीक है, so remember these two formulas. Always remember p gives you probability of success, q gives you probability of failure. And this is the formula for a binomial distribution. So probability of getting r success, you read this part, what is the probability of getting r success? Okay, I will take some examples also, तो उससे ये ज्यादा clear हो जाता है. So that formula is NCR, it's better to remember this, NCR p raised to r q raised to n minus r, where n is what? N is what? Number of trials. N is what? Number of trials. P is the probability of success, correct? Q is what? Probability of failure. ठीक है, एंड एनसीआर का फॉर्मूला ये है, अगर आपको नहीं पता है तो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल into n minus r factorial, and here r takes values from 0 1 to up to n, because total there are n trials, and r यहाँ पे डिस्क्रीट का चल रहा है, डिस्क्रीट मीन पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज इंक्लूडिंग 0, इट्स टेक इंटीजर वैल्यूज, तो आपको कहां से रन करना होगा? r 0 1 अप टू n. ठीक है, okay, so remember this formula, probability of getting r success using binomial distribution is NCR p raised to r q raised to n minus r. ठीक है, directly take one example and see there are some results also that you have to remember directly. In case of binomial distribution इसका प्रूफ भी है, ठीक है, मैंने अभी स्किप किया. Okay, in case of binomial distribution जो मीन होता है, मीन is actually n into p, when n is the total number of trials and p is the probability of success. Variance क्या होता है? Variance is nothing but square of the standard deviation, that value is npq. So obviously आपका standard deviation क्या होगा? Under root of npq. इसके ऊपर MCQ आने वाले. ये आपको पता है, sum of all probabilities. ठीक है, रैंडम वेरिएबल में जितने भी आउटकम्स आ रहे थे, अभी कितने आने वाले हैं? 0 1 2 up to n, because total there are n trials. Okay, so here if I add all this probability of getting 0, probability of getting 1, अगर आप इन सब के एडिशन करते हो, दैट एडिशन मस्ट बी 1. ठीक है, दैट एडिशन मस्ट बी 1. तो ये आपका लास्ट रिजल्ट है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम विल टेक वन एग्जांपल, तो ये सारी चीजें क्लियर होगी. सो क्वेश्चन 1 क्या है? अ फेयर कॉइन इज टॉस, ओके, 6 टाइम्स. ठीक है, सो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू रिपीट दैट एक्सपेरिमेंट? 6 टाइम्स. ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग अ कॉइन. एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग अ कॉइन. सो क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स. ठीक है, सो व्हाट इज माय पी? मुझे पी क्या डिफाइन करना होगा? पी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. कैलकुलेट क्या करना है? गेटिंग 2 हेड कैलकुलेट करना है. एग्जैक्टली गेटिंग 2 हेड मींस व्हाट इज पी? प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन में गिवन है वही आपको पी डिफाइन करना है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, P जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है. ओके, क्वेश्चन में जो पार्ट आपको कैलकुलेट करना है उसको ही आपको P लेके क्वेश्चन को कंप्लीट करना है. दैट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. तो में मुझे गेटिंग 2 हेड, गेटिंग 4 हेड, सो इट इज ऑल रिलेटेड विद द गेटिंग हेड. So here I define P to be the probability of getting head. Okay, so in case of tossing a coin,
tossing a coin, what is probability of getting head? From your base knowledge, what is probability of getting head? 1/2. 1/2. ओके, यहाँ पे बेसिक चीजें मैं कंसिडर कर रहा हूँ, जैसे कि कॉइन में आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज व्हाट 1/2, हाफ प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है. सो ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ क्यू इज आल्सो 1/2 बिकॉज इट इज 1 माइनस 1/2. अभी आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड मींस व्हाट, पी ऑफ आर इज इक्वल टू 2. काउंट, आर मतलब काउंट. सो कितने चाहिए आपको, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, सो हियर यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स. आपका फॉर्मूला क्या है, NCR P raised to R Q raised to N minus R, ठीक है. बट यानी क्या है, हाउ मेनी ट्रायल्स आर देयर, टोटल देयर आर 6 ट्रायल, सो 6C2 P is what 1/2, so 1/2 raised to 2 and 1/2 raised to N minus R, but N is 6 minus 2 is 4. Just calculate this, that is your final answer, ठीक है. And you can easily calculate this part on calculator. कैल्स में एक ऐसे आपको पुट करना है 6C2, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कैल्स में. Anyone please do this and tell me this value. बोलो बोलो. हाँ, R means R is what is that count? Okay, exactly 2 heads calculate करना है ना फर्स्ट क्वेश्चन में. प्रोबेबिलिटी इसको रीड कैसे करना है, हाँ, व्हाट इज, हाउ यू रीड दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर हेड, बट आर की वैल्यू क्या ली है मैंने 2, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड. पी ऑफ आर मींस व्हाट, पी ऑफ आर मींस व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर हेड, या हेड इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि पी आपने वैसे ही डिफाइन किया है, पी की वैल्यू क्या है, गेटिंग हेड. ओके, पी ऑफ आर मींस गेटिंग आर हेड. ओके, ये बस लैंग्वेज है, इट इज जस्ट अ लैंग्वेज. पी मींस व्हाट, गेटिंग हेड, है ना. सो पी ऑफ आर मींस व्हाट, गेटिंग आर हेड. तो आपको यहाँ पे पहले कितने चाहिए, हियर आई वांट 2 हेड, सो पी ऑफ आर इक्वल टू 2, ठीक है. नेक्स्ट केस में आप बोल दो, किसने कैलकुलेट किया ये, व्हाट इज दिस वैल्यू. ये आपको मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपको कैल्स में भी पता होना चाहिए ये करना कैसे. 15/64. टेल मी डेसिमल पॉइंट. 0.234. ओके, याद रखो, अभी मैं दिखाता हूँ ये करेक्ट है कि नहीं. 0.234. ओके, सो यानी इक्वल टू 6, एग्जैक्टली 2 हेड. ओके, 0.234. ओके, अभी नेक्स्ट हम यहीं पे करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट, एटलीस्ट 4 हेड. यस, कैल्स में ये एक ऑप्शन है ना वहां पे, सी का, सी बटन का है वहां पे. पहले 6 प्रेस करो. अभी सी बटन के लिए मुझे याद नहीं आ रहा कि शिफ्ट लेके लेना या Shift divide, sir. हाँ, शिफ्ट डिवाइड प्रेस करो, यू विल गेट दिस. और यस, एसेट कैल्स में टाइप करो, इक्वल प्रेस करो, 6C4 यू विल गेट दैट वैल्यू, या 6C2 यू विल गेट दैट वैल्यू. ओके ओके, नाउ सो टोटल देयर आर 6 ट्रायल, मतलब 6 टाइम्स आपको कॉइन को टॉस करना है. और आपको अभी क्या चाहिए, एटलीस्ट 4 हेड. मतलब क्या है, मतलब आर की वैल्यू क्या क्या होगी, एटलीस्ट 4 हेड. तो आर की वैल्यू क्या क्या, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर आर. यस, 4, 5, 6. एटलीस्ट 4 हेड मतलब 4 के आगे चाहिए, 4 के आगे. ओके, सो देयर में भी 4 हेड. जब आप 6 टाइम्स कॉइन को टॉस करते हो ना, जब आप 6 टाइम्स कॉइन को टॉस करते हो, यू मे गेट 4 हेड, यू मे गेट 5 हेड, यू मे गेट ऑल 6 टू बी हेड. ये 7 पॉसिबल है क्या नंबर, 7 पॉसिबल है. No, sir. हाँ, क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंट्स को 6 टाइम्स रिपीट कर रहे हो तो एट देन आपको कितना मिलेगा काउंट, वो 6 ही मिल सकता है, इसके आगे नहीं जाएगा. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड मींस व्हाट, P ऑफ R इक्वल टू 4. सो एक्चुअली इसमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड एटलीस्ट 4 हेड मींस व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड. ये आपको काउंट कैलकुलेट करना है. ओके, तो सेम फॉर्मूला क्या है, NCR P raised to R Q raised to R. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, सारे केस में 6. तो फर्स्ट केस में क्या आएगा, 6C4, P means 1/2, so 1/2 raised to R, R is 4, and 1/2 raised to 6 minus 4 is 2. Come to next.
6c, r की वैल्यू क्या है 5, p रेस टू r मीन्स 1/2 रेस टू 5 एंड 1/2 रेस टू 6 minus 5 is 1. Last 6c6, 1/2 raised to 6 and 1/2 raised to 6 minus 6 is 0. Just do this calculation on calculator, you will get the value of probability of getting at least 4 here. Okay, so that I can show you here. 0.343. That value is 0.343. ठीक है, ये एमसीक्यूज आपको आने वाले, तो आपको इतने जल्दी वो कैलकुलेशन करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज probability of getting no head. Means what? R equal to what? You don't want any head, तो R की वैल्यू क्या होगी? 0 ना. ओके, 1 लेता हूं, so means you will probability of getting 1 head. 2 लेता हूं, probability of getting 2 head. 0 लेता हूं तो probability of getting no head. ठीक है, so just calculate P of R equal to 0. NC 0, P raised to 0, Q raised to 6 minus 0. Just put the value of P to be 1/2, Q to be 1/2 and do that calculation. You will get 0.0156. ठीक है, तो अब ये one or more head means R equal to what? One or more head means R equal to what? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. ओके, अभी आप यहाँ पे देखो, बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? P of R equal to 1 plus P of R equal to 2 plus P of R equal to 3 plus P of R equal to 4 plus P of R equal to 5. ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा है इट टेक्स टाइम, सो व्हाट इज द इजीएस्ट वे? इसके लिए मैंने आपको एक रिजल्ट दिया था, वो रिजल्ट क्या था? ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1 is 1. ये रिजल्ट यूज करके व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस होल पार्ट? 1 plus P R is equal to 0. 0. इसमें मिसिंग क्या है? P of R equal to 0. आपको पता है कि अगर आप सबके एडिशन करते हो, मतलब P of R equal to 0, P of R equal to 1 up to P of R equal to 5, एक और मिसिंग था, सॉरी, P of R equal to 6. अगर आप सबके एडिशन करते हो, सबके एडिशन 1 आती है. ठीक है, तो आपको क्या पता है? एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स इज 1. ये रिजल्ट ही है. अप टू P of R equal to 6, इसके एडिशन क्या आती है? 1 आती है. बट आपको क्या चाहिए था? आपको इसके आगे ही चाहिए, तो वो क्या आएगा? 1 minus P of 0. तो इसलिए जो मिसिंग है वो यहाँ पे 1 माइनस करके मिसिंग पार्ट लिखो, दैट इज योर फाइनल आंसर. तो आपको ये समझ में आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन फॉर 1 2 3 4 5 6 नंबर, जस्ट डू दैट कैलकुलेशन फॉर 1 नंबर, दैट इज फॉर R equal to 0. दैट सेव्स योर टाइम. ठीक है, तो ये भी ट्रिक आपको यूज करनी है. ओके, तो वही एक ये आपको कैलकुलेट करना है, बट ये कैलकुलेट करने से अच्छा है कि आप क्या करो, 1 माइनस करके P of R equal to 0 कैलकुलेट करो. ठीक है, सो ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था, दैट इज योर फाइनल आंसर 0.9844. ठीक है, ओके, विल टेक वन मोर एग्जांपल. अभी भी अगर आपको क्लियरली नहीं समझ में आ रहा, आप एक्सपेरिमेंट अच्छे से रीड करो, देन यू हैव टू टेल मी व्हाट इज P, व्हाट इज Q. सो ऑन एन एवरेज अ बॉक्स कंटेनिंग 10 आर्टिकल्स is likely to have 2 defectives. ठीक है, if we consider consignment of 100 boxes, how many of them are expected to have 3 or less defective? Or less defective. Okay, what is my P? जो गिवन है वो P होता है, आपको मैंने पहले क्लियर किया. Yes, what is my P? 1/5. Defective. हाँ, पहले थ्योरेटिकली बोलो. प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? डिफेक्ट. हाँ, आर्टिकल्स जो गिवन है वही लेने वाला हूं मैं. क्या गिवन है? आपको ये गिवन है ना, ऑन एन एवरेज अ बॉक्स कंटेनिंग 10 आर्टिकल्स लाइकली टू हैव 2 डिफेक्टिव. सो वी हैव गिवन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स. सो P is what? Probability of defective articles, and that count is what? So from 10 articles 2 are defective, so that probability is 1/5. Correct. So from this you can calculate Q, which is 1 minus 1/5, and that become 4/5. So now you have P, you have Q. ये स्टेटमेंट में बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. ये एक्चुअली कंसाइनमेंट का है, मतलब बॉक्स कंसिडर करो 10 आर्टिकल के. आपको पहले कैलकुलेट क्या करना है? हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्सपेक्टेड टू हैव
3 or more, so total how many articles are there? 10 articles are there. ये आपने लिया था ना, 10 आर्टिकल्स के लिए सब कुछ आप कर रहे हो. पहले आप 10 आर्टिकल्स के लिए करो, फिर ये स्टेटमेंट पे हम आते हैं, कंसाइनमेंट का स्टेटमेंट, इस पे बाद में वर्कआउट करते हैं. ठीक है. सो टोटल देयर आर 10 आर्टिकल्स, फ्रॉम दैट 2 आर डिफेक्टिव, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल इज 1/5 and Q is 4/5. Then next is what? Okay, so how many? So total there are 10 articles, so that so the value of n is 10. आपको कैलकुलेट क्या करना है? Find the probability of R, means how many of them are expected to have 3 or more defective, means Q of R greater or equal 3. ये आपको कैलकुलेट करना है. So what is that count? तो क्या आएगा? What is P of R greater or equal 3? R is equal to और लेस है ना, 3 सॉरी हाँ, लेस सॉरी, हाँ 3 और लेस इक्वल 3. ओके, अभी बोलो. सो व्हाट इज दैट काउंट? लेस इक्वल 3 का काउंट क्या होगा? डिफेक्टिव आर्टिकल का. 0 देयर में भी plus 0 1. डिफेक्टिव आर्टिकल, करेक्ट. देयर में भी 1 डिफेक्टिव आर्टिकल, देयर में भी 2 डिफेक्टिव आर्टिकल, देयर में भी 3 डिफेक्टिव आर्टिकल. दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटी लेस इक्वल 3 के लिए. ठीक है. तो हर एक केस में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, कुछ तो वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी इन ईच केस. ठीक है. हाँ, अभी आगे. ओके, पहले इतना तो एक्सप्लेन कर लेता हूँ. इट इज देयर. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल इन अ बॉक्स, दैट वैल्यू इज 1/5, सो Q इज 4/5. ओके. नाउ बाय बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वी नो दैट फॉर्मूला है ना, और आपको n का लेना है 10, क्योंकि ये 10 आर्टिकल के लिए चल रहा है सब कुछ. So probability of, ये statement wrong है. So R less equal 3 is P of R equal to 0, P of R equal to 1, P of R equal to 2, P of R equal to 3. हर एक केस में कैलकुलेट करो, बिकॉज सारे वैल्यूज आपके पास है. So do it for each value. It takes some time. ये theoretical question है, तो ऐसे आपको नहीं आने वाले ज्यादा कुछ, आपको स्मॉल वैल्यूज पे आता है ये सब कुछ. ठीक है. So that value is 0.8791. Okay. तो ये हो गया. This is only for 10 articles. बट आपको क्या करना है, ऐसे 10 आर्टिकल, ऐसे जो 10 आर्टिकल का आपको एक कंसाइनमेंट कंसिडर करना है इन द काउंट ऑफ 100. ऐसे आपको 100 बॉक्सेस कंसिडर करने, सिंपली 10 आर्टिकल के आपको ऐसे 100 बॉक्सेस कंसिडर करने, एंड उस 100 बॉक्सेस के लिए आपको कैलकुलेट करना है हाउ मेनी आर्टिकल्स आर डिफेक्टिव. ओके, लेस देन और इक्वल टू 3. ठीक है. हाउ मेनी articles, let me read that. उनमें से आपको काउंट करना है हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्सपेक्टेड टू हैव 3 और लेस डिफेक्टिव. क्वेश्चन क्या था? 10 आर्टिकल का एक सेट के लिए आपने ये सारा कैलकुलेशन किया है. ऐसे 10 आर्टिकल के आपको 100 बॉक्सेस कंसिडर करने, एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी ऑफ देम एक्सपेक्टेड टू हैव 3 और लेस डिफेक्टिव. तो आपने क्या किया है, 10 आर्टिकल के लिए आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है. ठीक है. आप उस प्रोबेबिलिटी से बस 100 को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दैट एग्जैक्ट काउंट. तो हियर you have the probability for 10 articles, so that probability is 0.8791. So for the 100 boxes, multiplied by 100 only, so 100 into 0.8791, so that count is 87.91. but ये नंबर है, ये इंटीजर वैल्यू है ना, तो इसलिए 87.91 को आप कैसे कंसिडर कर सकते हो? दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 88. so total there are 88 boxes are there, okay, which are having less equal 3 defective articles. ठीक है. तो इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ऑनलाइन में. okay. अभी ये थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी यहाँ से. ठीक है. विल टेक वन मोर एग्जांपल. नेक्स्ट इज व्हाट, ओके, आई थिंक चलिए लास्ट लेके फिनिश करते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग अ टारगेट, साइड बाय साइड यू कैन पुट योर रोल नंबर इन द चैट बॉक्स, इज 1/3. तो आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है डायरेक्टली. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट इज 1/3. यू कैन कैलकुलेट 1 minus 1/3 is 2/3. If he fires 5 times, मतलब n equal to 5 है, what is the probability of he's hitting a target at least twice? Means क्या कैलकुलेट करना है? Equal to what? Yes? R equal to क्या कैलकुलेट करना है? बोलो. Just tell me this, then we'll stop. What is the probability? R equal to 2. Okay, if he fires 5 times, okay, 5 times वो फायर कर रहा है, okay, we have to find a probability of hitting a target twice. ठीक है.
मीन्स P of R equal to 2. P means probability of hitting the target. आपको वो काउंट क्या चाहिए 2. ठीक है, सो जस्ट कैलकुलेट P of R equal to 2. सिंपल टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, जस्ट कैलकुलेट P of R एटलीस्ट, सॉरी एग्जैक्टली 2 नहीं है. ओके, एटलीस्ट ट्वाइस. ठीक है, अगर वो 5 टाइम्स फायर कर रहा है, ओके, he must hit that target at least twice. Means what? Maybe he hit 2 times, maybe he hit 3 times, maybe he hit 4 times, maybe he hit 5 times. At least twice का ये मीनिंग होता है. ठीक है, अगर ये वर्ड नहीं होता then you have to calculate exactly for R equal to 2. ठीक है, so just calculate for so instead of this it's better to calculate 1 minus P of R equal to 0 plus P of R equal to 1. ये इजी जाएगा आपको. ठीक है, शायद मैंने किया है. हाँ, मैंने किया है. 1 minus P of R equal to 0, P of R equal to 1. That is your final answer. जो भी आप वैल्यूज पुट करो, कंप्यूट करो. ठीक है, तो ये थ्योरेटिक पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन है. ओके, एक्चुअली जो एमसीक्यू के क्वेश्चन है दैट विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. तो तब आपको अच्छे से फोकस करना है. अभी थ्योरी क्वेश्चन कुछ लेंदी है, तो इतने क्वेश्चन तो आपको नहीं आने वाले एग्जाम में. इसको ही उन्होंने स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया है. मतलब R equal to 1 पे कैलकुलेट करो, R equal to 2 पे कैलकुलेट करो, ऐसे स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करके उन्होंने वो किया. सो दैट विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. Okay, now you can put your roll number in chat box for the attendance. If you don't have any doubt, then you can leave this session. We'll continue this part in the next lecture. Next lecture में डायरेक्टली मैं MCQs लेता हूँ बाइनोमियल के, then we'll go to the Poisson distribution. तो 2 टॉपिक हो जाएंगे कल के लेक्चर.